طرف ہماری انتظامیہ ہے، تو ان دونوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے کہ یہاں ہمارے پانی کا ہر دوسرا بندہ جو پانی کی بوتل پکڑ کے وہ منرل واٹر سمجھ کے پی رہا ہے، وہ منرل واٹر نہیں، منرل واٹر کے وہ کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتا۔ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور جوس ہیں وہ اس سٹینڈرڈز اور ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، اور جہاں جہاں انٹرنیشنل ایس او پیز اور برانڈز ہیں وہ اس کے ایک سیٹ پروسیجرز ہیں، اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اپنی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ان کا اپنا ایک مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کے اندر یہ ملاوٹ اور جس طرح سے انگریڈینٹس جو باہر دکھائے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لیبارٹریز ہی اس عمل کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور ضلعی سطح پہ ہم ان فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا ایک دائرہ کار وسیع کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اس میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ تحصیل اور ضلع کی سطح پہ جو انتظامیہ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ان کے شہروں میں عوام کی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ذمہ داران جو ہے وہ کسی صورت بھی قانون کے شکنجے سے نہ بچ پائیں۔ آخر میں چونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے فرینچائز ہیں، جتنے بڑے فوڈ فرینچائز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں، وہ کس طرح اسٹیٹ آف آرٹ 100% ہمیں کوالٹی فوڈ دے رہے ہیں، کیا اس پروسیس کو آپ لوگ جتنے جانتے ہو جو باہر جن کو اتفاق ہوتا ہے اور جو پاکستان میں پونی چین سے کھانا کھاتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ان ریسٹوران میں جاتے ہیں، تو بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہماری ہیلتھ ہائیجین ہے، جو ہمارے کوالٹی فوڈ کے ایس او پیز ہیں ان کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ اس کے لیے بھی چیئرمین صاحب اور پنجاب فوڈ اتھارٹی ایسے پوائنٹس کو رینڈم چیکنگ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ انشور ہم کرنے جا رہے ہیں کہ بڑا نام جتنا مرضی بڑا ہو قانون کے تابع سب کو آنا ہے، اور بڑا جب قانون کے تابع آئے گا تو نیچے ٹھیلے والے اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ سب کا یہاں آنا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاوشوں کو تقویت دینا، اور میڈیا کے ذریعے میڈیا کی پارٹنرشپ سے ہم عوام کو یہ آگاہی دینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، اور آپ کی تجاویز کے لیے بھی ہم متمنی ہیں، کیونکہ یہ ایسا جہاد ہے جو میڈیا کے تعاون کے بغیر اس جہاد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دورہ کیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا، اس کا قیام شہباز شریف نے کیا تھا، کیا یہ منصوبہ شفاف ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت جو انڈوں کی قیمت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس، کوئی حکومت اس کے اوپر ایکشن لے گی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو فوڈ اتھارٹی قائم کی گئی تھی اس کے اندر پچھلے ماضی کے اندر اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کیا گیا، بہت سے ریسٹورینٹ کو سیل بھی کر دیا گیا، حال ہی میں مریم نواز نے پٹ کڑائی پہ کھانا کھایا اور اس کو بھی سیل کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو صرف ایک شہر تک، ایک صوبے تک اور ایک کسی مخصوص اسپیسیفک شہر تک محدود کرنا اس عمل کی نفی ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا، کیونکہ یہاں ہمیں جو ہے وہ
ذریعے میڈیا کے ذریعے اس آواز کو تقویت دینی ہے کہ حکومت یا عوام صرف بڑے شہروں میں نہیں بستے، جو چھوٹے شہر دیہات ہیں 70% لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو جو سابقہ دوار میں ترقی کا پہیہ اور صرف ایسے اقدامات بڑے شہروں تک محدود رہے، ان کو ہم نچلی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس تبدیلی کا سفر ہے جس میں ہر شہری جو ہے مستفید ہوگا۔ جو آپ نے دوسری انڈوں کی بات کی، تو دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ سردیوں میں وہ بیکریز ہوں، وہ شادی ہال ہوں، وہ ریسٹورنٹس ہوں، جو گھر کے اندر رہنے والے افراد ہوں، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پولٹری اور پولٹری کموڈٹی اور پروڈکٹس کی۔ اس کے لیے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو کریڈٹ اس حوالے سے جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو گندے انڈوں کے ذریعے بیکریز کے اندر کنزمپشن ہوتی تھی، جو ایکسپائرڈ انڈے تھے ان کو بیکریز میں یوز کر لیا جاتا تھا اور بسکٹ کی فیکٹریوں میں یوز کر لیا جاتا تھا، کیکس میں یوز کر لیا جاتا تھا۔ جب سے یہ قانون کی عملداری کے لیے انہوں نے شکنجہ سخت کیا ہے، انڈے تو مہنگے ہو گئے۔ اب وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ آ گیا، کیونکہ جو لوگ پہلے وہ گند آپ کو کھلاتے تھے، اب انہیں مارکیٹ سے وہ ایکچوئل جو ہمارا کوالٹی پروڈکٹ ہے وہ لینی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے پیچھے آگے ڈیمانڈ بڑھی، سپلائی اتنی نہیں ہے۔ تو یہ کرائسس آیا جو وقتی ہے، اس کو حکومتی سطح پہ منسٹر فوڈ کی سربراہی میں ایک کمیٹی اینالائز کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی معافی ہے یا واقعی جینوئن ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے۔ اس کا عوام کی اس تکلیف کا ازالہ کرنا کہیں اپوزیشن نے میڈم کہیں اپوزیشن نے تو نہیں ساری مرغیاں خرید لی اور وہ انڈے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور حکومت اور اداروں کو نہیں دے رہے اور انڈے مہنگے ہو گئے ہیں؟ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کی حکومت کے خلاف اپوزیشن یہ سازش کر رہی ہو کہ مرغیاں اٹھا کے لے جائیں، انڈے نہ ملیں، انڈے مارکیٹ میں مہنگے ہو جائیں؟ امین حفیظ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں گندے انڈوں کی طرف آؤں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف آؤں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کے اگر آپ نکال لیں ڈیٹا اور ایک پورا انالیسس، تو یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ جہاں باقی ہر شعبے میں انہوں نے کسی کو موقع نہیں دیا کہ کوئی اور بھی کاروبار کرے، تو یہ پولٹری اور یہ سارا اس کے ساتھ جڑا شعبہ جو ہے وہ بھی ایک ہی خاندان کے چھتری کے نیچے پروان چڑھتا رہے، تو وہ پولٹری فیڈ ہو، وہ پولٹری کا گوشت ہو، وہ پولٹری کے ساتھ جڑے انڈے ہوں، ان کی اجارہ داری وہاں پہ بھی رہی ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا، میڈم یہ بتائیے گا فوڈ اتھارٹی نے بہت چھاپے مارے، بہت چلان کیے، ایسا کیا ہے کہ خالص دودھ آج بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا؟ یہ بتا دیں خالص دودھ کب اور کہاں سے ملے گا لوگوں کو کہ اپنے بچوں کے منہ میں اللہ کی نعمت خالص ڈال سکیں؟ خالص دودھ تو ماں کے گود سے ملے گا، اور ماں ہی کا دودھ 100% خالص دودھ ہے جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے۔ باقی جو ہے ہم اس کو خالص بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے۔ میرا بھائی بتائے گا بھینسوں کا دودھ خالص نہیں ہے، وہ جعلی ہے۔ نہیں میڈم، آپ کو بھی ماں کا دودھ تو خالص ہے، کیا بھینس مطلب وہ جعلی دودھ دیتی ہے، خالص نہیں دیتی؟ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھینسوں کو دیہات کے اندر دودھ کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے، مصنوعی پروڈکشن بڑھانے کے لیے انجیکشن لگا کے
वो दूध जो है आलूदा किया जा रहा है। और जो पानी डाला जाता है, दूध वाले सवाल का प्लीज जरा सुन लीजिएगा। दूध वाले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूं। चेयरमैन साहब ये बता दें, चेयरमैन दूध का ये बता दें, क्या बता? क्या मार्केट में 80-90 रुपए किलो मिलने वाला दूध खालिस है? क्या आप लोगों की आंखें खुली है? ये बात है, खालिस दूध कैसे मिलेगा? अमीन क्वेश्चन खालिस दूध बहुत जरूरी है। भाई जवाब तो सुन लो ना, बात पहले मुझे भी कर लेने दे। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त दूध का एक क्राइटेरिया जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेट किया है, दूध में दो चीज़ें हैं, एक SNF है और एक उसकी फैट है, जिससे पता चलता है कि दूध की क्वालिटी कैसी है। हम जो खालिश दूध की बात करते हैं, किसी भी दूध के अंदर चाहे पानी डाल दिया जाए या कोई भी और अडल्ट्रेशन की जाए तो वो खालिश नहीं रहता। ये आपकी बात ठीक है, जो 80 रुपये या 90 रुपये में मिलता है उसके फैट लेवल और SNF लेवल जो है वो कम होता है, उसकी ग़िज़ाई जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसमें जब खालिश निकलता है, भैंस से मिल्किंग की जाती है तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो उससे मैच नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार उसके ऊपर इंस्पेक्शन भी जारी है, लगातार उसे, और सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त फूड के ऊपर है, दूध के ऊपर है हमारा। अब इसमें हम आगे जो करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में खुले दूध का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें अभी तक अवेलेबिलिटी, और हमने पिछले 2 साल में वो पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने सर्वेस किए हैं और इंशाल्लाह कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हमने कैबिनेट के एजेंडा में रख दिया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि लाहौर में हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर खुले दूध को एक मखसूस एरिया में बैन करने लगे हैं और वहाँ पे पाश्चराइज मिल्क जो है उसको चेयरमैन साहब ये तो 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सवाल ये है आज आपने आई है पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर, आप कहती हैं हमने जालसाज और माफियाज को पकड़ना है। एक जालसाजी नवाज शरीफ की रिपोर्ट के साथ हुई थी जिसकी बुनियाद पर वो इंग्लैंड चले गए। आपकी जहाती टीम ने उस जालसाज माफिया को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया? देखिए बात ये है कि जिस नेटवर्क का हम जिक्र करते हैं, ये हम मूवी देखा करते थे ना बचपन में कि जहाँ इंटरनेशनल लुटेरे, और जिसमें हर मुल्क में जहाँ जिस तरफ मूव करते थे उन्होंने अपना एक हब और बेस बनाई होती थी। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने हर शोबे के अंदर अपने मनपसंद हवारी और दरबारी भर्ती करके अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठाए हुए हैं। तो क्या यास्मीन राशिद साहबा भी उसी लुटेरों का हिस्सा? क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा ने भी तब गारंटी दी थी क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा किसी लैब को ना चलाती हैं और ना उनकी कोई लैब है। वो लैब की रिपोर्ट्स जो हैं उनकी बेस पे अदालतों ने और हुकूमत ने उनकी सेहत का पैमाना फिक्स किया था कि वो लागर हो गए हैं, वो इतने बीमार हो गए हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो सैंपल लाने वाले और फिर वो सैंपल को एनालाइज करके रिपोर्ट देने वाले जो है उनके हवाले से उनकी मंजी ठोकने की ज़रूरत पड़ गई है। बाकी चीज़ें जो है बाकी सारी जो है वो आपको पता है। मैडम पोल्ट्री की सन्नत में आपने एक फैमिली का नाम लिया, उस फैमिली का नाम ही आज बता दें, क्योंकि फ़याज़ुल हसन चौहान कहा करते थे कि जब कुकरी की प्राइस बढ़ती है तो हमजा शहबाज कुकरी उन्होंने नाम डाला था। क्या ये वही फैमिली है या कोई और फैमिली है? देखिए बात ये है कि इसमें तो किसी को शक ही नहीं है कि पोल्ट्री के कारोबार के फीड से लेके ब्रायलर मुर्गियाँ, वो मैं कनीज़े अव्वल दो इनकी बात नहीं कर रही, जो ब्रायलर मुर्गियाँ जिनको मार्केट में लाने से पहले वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है और वो तयन करते थे कि आज मार्केट में रेट क्या होना चाहिए। तो जो रेगुलेट करते थे इस कारोबार को, और वो एक ही ख़ानदान है, और मैं नहीं समझती कि अभी वो अपने उस अमल से बाज आए हैं। जेल में भी बैठ के हो सकता है कि ये उनकी कारस्तानी रूए कार लाई जा रही हो, और मैं समझती हूँ कि अभी हमें इस चीज़ पे, जब आप एक रेगुलेटरी प्रोसेस को अंडर सर्टन रूल्स एंड पैरामीटर्स सेट कर देते हैं, तो हमें फिर ये उसकी आर्म ट्विस्टिंग करने वाले, उसको कानून की आड़ में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हैं
उनकी फिर दुकान बंद हो जाती है। ये दुकानें उस वक्त चलती हैं जब कानून की दुकान जो है उसमें सौदा ना अच्छा, हो। मैडम, कोरोना- तो अब कानून की दुकान में सौदा है। मैडम साहब ये बता दें कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो मशवरा दिया था मुर्गी और अंडों का, क्या ये जो कारस्तानी है इन्हीं को देखते हुए ये मशवरा दिया गया था कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, अंडों के रेट भी बढ़ सकते हैं, मुर्गी का रेट भी आसमान को छू सकता है? देखिए, जो आपकी इंटरनेशनली माइक्रो इकोनॉमिक एंड क्रेडिट पॉलिसी है उसके अंदर दुनिया भर में लोगों ने मुर्गियां भी पाली, उससे पैसे भी कमाए, उन्होंने छोटे जानवर भी पाले, उनसे भी पैसे कमाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक कॉमन मैन को एम्पावर करने वाला। बाकी उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन ये इंटरनेशनल कॉमन मैन एम्पावरमेंट प्लान है और वज़ीर-ए-आज़म ने उसी को बुनियाद बनाते हुए देहात के अंदर इसको मुतारिफ कराया था, ताकि घरों के अंदर कोई बेवा औरत है, कोई डिसेबल्ड है, कोई यतीम बच्चे हैं, तो वो अपने घर के अंदर। मैडम वो मुर्गी पाल स्कीम तो है ही नहीं, मुर्गी पाल स्कीम तो खत्म हो गई है। किसी को उस्मान बुज़दार ऑपोजिशन के चर्चा में गए थे क्या? कि जैसे पहले नहीं रोका आपने, इस बार भी नहीं रोके। अच्छा, कल आपने ट्वीट किया था कि ओपोजिशन के जलसों का पहला नतीजा आ गया, उस्मान बुज़दार को भी कोरोना हो गया, तो क्या उस्मान बुज़दार साहब भी ओपोजिशन के जलसों में गए थे? पीडीएम लाहौर के जलसे में उस्मान बुज़दार गए थे या नहीं, ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए, दो अहम बातें हैं बेटे। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि इसमें किसी को शक नहीं है कि ये कोरोना की जो लहर है ये पहली लहर से ज़्यादा शिद्दत रखती है और इसके मनफी असरात भी पहले से ज़्यादा है। अब जब लाहौर के अंदर रहने वाला या जिस शहर के अंदर भी मैस मोबिलाइजेशन होगी और आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और अल्टीमेटली वो एक वबा जो है उसके पंजे उस शहर में मजबूत होंगे, उसकी ज़द में कोई भी आ सकता है। वो वज़ीर आला हूँ या हम में से आप में से कोई भी हो, दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको इससे महफूज रखे। अपोजिशन की नादानियाँ और अटकेलियाँ जो है वो असल में इस वबा को फैलाने का बायस बन रही हैं। हमारा मुद्दा ये है कि खुदा के लिए आप कोरोना के नाम पे अंगड़ाइयाँ ना लें, कोरोना की बुनियाद पे आवाम से बदला ना लें। इनको फॉर द टाइम बीइंग ये जो इस वक्त लहर है इससे महफूज बनाने के लिए हुकूमत के साथ काविशों में हिस्सेदार बने। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद ज़ाहिर है उनको क्वारंटाइन होना था और उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। और साइन एंड सिम्टम्स जो हैं जिसने कोरोना के उस फेज से गुजरा है और चूँकि मैं भी वो मज़ा चख चुकी हूँ तो मुझे पता है कि ये जो कोरोना के मरीज़ होते हैं उसके लिए जितना मर्ज़ी आपके अंदर एनर्जी हो, जितनी मर्ज़ी आपके अंदर कमिटमेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको बेड पे लिटा के। मैडम वज़ीर आला एक सेकंड, यार एक सेकंड, हेलो सर एक मिनट, मैडम एक सुने, मैडम एक मिनट, मैडम सुने वज़ीर आला का कोरोना टेस्ट, एक मिनट, वज़ीर आला का कोरोना टेस्ट आपने कहा पॉजिटिव आया है। महकमा सेहत कहता है कि जिसको कोरोना हो उसके इर्द गिर्द 20 लोगों का टेस्ट करना जरूरी है। क्या आप बतौर मेहमान मुआवने खसूसी और पूरी पंजाब कबीना कोरोना टेस्ट करवा रही है या आपने जरूरत महसूस की? जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उनके लिए कल ही उनके सैंपल वगैरह दे दिए गए थे। सूबाई वज़रा और के सूबाई वज़रा में जो उनके कांटेक्ट में है वो ज़रूर उनके सैंपल होंगे, चूँकि मैं अपनी एंटीबॉडीज़ करा के ही मुतमईन हो सकती हूँ कि मेरे अंदर जो कोरोना वायरस था उसके ख़त्म होने के बाद ही एंटीबॉडीज़ आई हैं। तो अगर मेरा भाई अमीन हफीज़ चाहता है तो मेरे लिए इतना परेशान है तो मैं फिर दोबारा करवाती हूँ ताकि मुझे मैडम मेरे वो 80 और 90 रुपए का जो शहर में दूध मिलता है इस फूड अथॉरिटी में है, ये सवाल करते हैं पूरा शहर, एक एक बच्चा एक एक माँ सवाल पूछती है कि बाजार में मिलने वाला 80-90 रुपए किलो जो दूध है वो हालस है, जैली है, नकली है, बच्चों को पिलाएं ना पिलाएं, आप बताएं।
और इसी सवाल के साथ ऐड कर लीजिएगा कि यार आने दें, पहले आने दें यार, 1 मिनट। 80-90 रुपए वाला दूध खालस है, जेली है, क्या है? फूड अथॉरिटी कहाँ पे है? देखिए, फूड अथॉरिटी आपकी खिदमत के लिए आपकी दहलीज पे और आपके कदमों पे, हर गली में, हर मोहल्ले अब में देखना 80-90 रुपए का दूध मिलता है, वो असली है नकली, ये सवाल है। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जितने जोश से, जितने पुरज़म हो कि मेरा भाई हमसे पूछ रहा है, वो 35 साल वालों से भी पूछना था, थोड़ा सा जोश उनसे, उनको दिखाते आप। हम तो अभी आए हैं, अभी 2 साल 2.5 साल पहले आके हमने जो नहीं हो रहा था और जो गलत हो रहा था, हमने उसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए कानूनी और हर तरह के जो बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव थे उनका आगाज़ किया है। अब दूध की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रैंडम सैम्पलिंग और उसके साथ बिल्ली भी आ गई है, कहती है दूध असली नहीं मिलता, ये देखना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सेहत बता रही है कि वो कोई ये वही बिल्ली है, मेरा हाल है, जिनको बिल्ली से दूध बचाने के लिए रखवाले बनाए गए थे। तो ये बिल्ली और बिल्लियाँ वही है। का सवाल ले लें, सियासी संजीदा। अपोजिशन प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि उस्मान गुलजार उनका पीडीएम लाहौर का जलसा देखने आए थे, क्या वो जलसा देखने गए थे या नहीं, इसकी तईद या तरदीद कर दें, क्योंकि आप मामले खसूसी हैं। और दूसरा, फयाजुल हसन चौहान की कल की स्टेटमेंट है कि फरदौस आशिक अवान साहिबा ये जो बॉक्सिंग, जूडो, कराटे के मुकाबलों के बातें करती हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट सियासत में नहीं देनी चाहिए। ज़रा दोनों की तईद और नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं फरदौस आशिक अवान साहब को पहलवान बनने का। हाँ जी, मेरा भाई है चौहान, और वो जो भी कहे उससे सारे गुनाह माफ, उसको वो सारे गुनाह भी और 7 खून माफ है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। जलसे वाली दूसरा जो है वो जलसे में, चूँकि हमारे इस वक्त अपोजिशन को ये नहीं पता, नादान दोस्तों को, कि टेक्नोलॉजी के दौर में सर वहाँ जाके नहीं गिने जाते। सर गिनने के लिए ड्रोन कैमरे जो हैं वो मौजूद हैं, और ये धकिया डोसी सियासत वाले जो हैं, इनको बताएं कि 150 कैमरे जो हैं वो सिर्फ आपकी अदाएँ देखने के लिए लगाए गए थे कि आप कर क्या रहे हैं। और वो सीएम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के उनको खुद मॉनिटर कर रहे थे कि जिन्होंने मसल दिखाए थे, जिन्होंने मुक्के दिखाए थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था, तो उनकी इस फेलियर के बाद की चेहरों पे उठने वाले जो असरात थे, उसको भी हमने उन कैमरों की नज़र से महफूज बनाया हुआ है। अगर कोई अपोजिशन चाहती है तो वो तमाम तर उनके उतरे हुए चेहरे, उसके असरात और मायूसी के बादल जो उनके चेहरों से यहाँ हैं, वो हम उन कैमरों से उनको फुटप्रिंट्स उनके भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चलें। चलें जी।